Oh. प्रेज द लॉर्ड सबको, जय मसीह की। Praise the Lord. Jai Masihi. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord, brother. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हाउ आर यू ऑल? हाउ इज एवरीवन? सब लोग कैसे हैं? Fine, fine. Thank you. सब लोग ठीक है। ठीक है। प्रेज गॉड। आप कैसे हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ प्रभु की दया से। लक्ष्मी सिस्टर, आपका तबीयत कैसा है? आपका माइक म्यूट में है लक्ष्मी सिस्टर। Shweta, how is your parents? How are your parents doing? Yes, brother, they both are fine. Okay, they're okay now. Great. Okay, लक्ष्मी सिस्टर, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ brother, सुनने कर रहे हैं। कैसा है आपका तबीयत, कैसा है? बस चल रहा है ऐसे। हाय, दर्द है, कमर का बहुत ज्यादा दर्द है। ओके, लेकिन परसों दिन डॉक्टर पास जाके हाँ दिखाया है। अभी उसने कहा है हफ्ते के लिए दवा दिया है। हाँ, उसके बाद में उसने बोला है आपका टेस्ट करना पड़ेगा, आपका दर्द ज्यादा है, आपका प्रॉब्लम है, एक्सरे निकालना पड़ेगा, ओके। MRI निकालना पड़ेगा, पीठ में? ऐसा बोला डॉक्टर ने। पीठ का प्रॉब्लम है? नहीं, पीठ में, ये जो नहीं नहीं, कमर 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 में? ओके, कमर का तरफ, वो अपने रीढ़ की हड्डी है ना। ओके, ठीक है। प्रभु अनुग्रह देता है। परमेश्वर आपको अब तक बल दिया जी जी, सहन करने के लिए, बराबर? हाँ हाँ या जी दिया, हाँ। प्रार्थना जारी रखेंगे। ओके, जी जी, मैं बोला डेली उनको प्रार्थना। बच्चे तो खाता है अपन। यस यस, जी प्रार्थना जारी रखेंगे। या हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। रीना सिस्टर, हाउ इज जैना? ब्रदर गॉड की उसको पहले से फर्क है। हाँ, उसका हाथ में जैसे हर वक्त क्रैम्प्स पड़ते थे वो तो नहीं है, ओके लेकिन अभी भी लिखती है तो मतलब जैसे 2-3 पेज लिखती है तो थोड़ी सी कंप्लेन करती है। ओके, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मतलब अपने आप थोड़ा पढ़ती है, वचन भी पढ़ती है, कभी हीलिंग प्रेयर करती है, ऐसे थोड़ा चालू किया है उसने। वचन पढ़ती है। ओके, हाँ जी, सॉरी योर वॉइस इज ब्रेकिंग। ज्वाइन नहीं करते। Sorry? अच्छा अच्छा, वॉइस इज ब्रेकिंग। हाँ, अभी अभी ठीक है, बोलिए। बस उनके लिए ये मतलब सबके साथ मिलके ज्वाइन करें बाइबल स्टडी वगैरह ये सब, जैना और उसके फादर। ओके, उसके लिए प्रार्थना करनी। हाँ जी हाँ जी, ओके ओके, श्योर श्योर, ज्वाइन करेंगे उन लोग भी एक दिन। विल कंटिन्यू प्रेइंग फॉर देम आल्सो। यस या यस, आमेन आमेन। Lijo, how's your dad and mom? हेलो, Hello, Jose. Yeah, they're doing well, Jose. Okay.
They're doing good. Yeah. Okay. Praise God. Praise God. Okay, let us pray and start. हम प्रार्थना करके शुरू करते आज का Bible study. And Bethany, over to you. You can pray as the Lord reminds you. These conversation that we had. Those who need prayer, whoever has said, as the Lord reminds you the names or without the names, you can just pray and start the worship. Okay, Bethany? Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, for this beautiful time you have given us, the Lord Father. We thank you, Lord Father, for getting us all over here once again in your presence to glorify and magnify your holy name, O Lord. We also pray for all the prayer requests that have come forth, O Lord Father. We are your children and we are called by your name, Father. And even as everyone has kept their requests and petitions before you, O Lord, you heal us, O Lord Father. You heal your children, O Lord Father. We know, O Lord Father, that you are our healer and you are our God. And there's no other God beside you, O Lord Father. By your stripes we are healed, O Lord Father. You have taken all our sickness and iniquities on that cross, O Lord Father. We thank you, O Lord Father, for your healing touch that is flowing in their bodies at this moment, O Lord Father. Even we pray for the people who have not even put for their petitions, O Lord Father. You know, O Lord Father, what is their need at the moment, O Lord Father, from what they are going through, O Lord Father. We pray, O Lord Father, for each and every one of us, O Lord Father. Cover us with your precious blood, O Lord Father, and heal everyone, O Lord Father. We know, O Lord Father, that you are a prayer answering God, and you will answer us, O Lord, and you hear us, O Lord Father. We also commit this whole time into your hand, O Lord Father. We commit the worship into your hands. You lead me and guide me. We also pray for the word, O Lord, that's going to come forth, O Lord. You cover Joe's uncle with your precious blood, O Lord Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. मुक्ति का नायक है वो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक है वो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। हालेलुया आमेन, 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 हालेलुया आमेन। मैं गाते गाते रहूंगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा। मैं गाते गाते रहूंगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा, और दौड़ते दौड़ते गाऊंगा, और दौड़ते दौड़ते गाऊंगा। मेरा यीशु जिंदा हुआ, मेरा यीशु जिंदा हुआ, मुक्ति का नायक है वो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। हालेलुया आमेन, 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 हालेलुया आमेन,
मुझे गले लगाया अपने, मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे पापों को क्षमा किया, नए सिर से मुझे बनाया, नए सिर से मुझे बनाया, मुक्ति का नायक है वो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, आमेन, हालेलुया 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 आमेन। वो प्रेम के अभिषेक से चलाता है मुझे हरदम, वो प्रेम के अभिषेक से चलाता है वो हरदम, शैतान को जीतने के लिए, शैतान से जीतने के लिए अधिकार वो दे दिया है, अधिकार वो दे दिया है, मुक्ति का नायक है वो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है, मुक्ति का नायक है वो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। हालेलुया आमेन, 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 हालेलुया आमेन। मेरा यीशु उद्धारक, तेरे जैसा कोई नहीं, सारा जीवन स्तुति करूं तेरे सामर्थ्य प्रेम की। मेरा आश्रय शक्ति और शरण स्थान, हर एक सांस जो भी मैं हूँ आराधना करूँ हमेशा। पुकारो प्रभु को, गाए सृष्टि सारी, शक्ति और सामर्थ महिमा राजा की। पहाड़ झुके गरज सागर, तेरा नाम सुनते ही आनंद से गाऊं
मेरा यीशु उद्धारक, तेरे जैसा कोई नहीं। सारा जीवन स्तुति करूं तेरे सामर्थी प्रेम की। मेरा आश्रय आराम, शक्ति और शरण स्थान, हर एक साथ जो भी मैं हूँ, आराधना करूं हमेशा। पुकारो प्रभु को, गाए सृष्टि सारी, शक्ति और सामर्थ महिमा राजा की। पहाड़ झुके गरजे सागर, तेरा नाम सुनते ही आनंद से गाऊं तेरे कामों के लिए। सदा करूं प्यार, सदा रहूं तैयार, तेरे कामों की तुलना मैं किससे करूं। पुकारो प्रभु को, गाए सृष्टि सारी, भक्ति और सामर्थ महिमा राजा की। पहाड़ झुके गरजे सागर, तेरा नाम सुनते ही आनंद से गाऊं तेरे कामों के लिए। सदा करूं प्यार, सदा रहूं तैयार, तेरे कामों की तुलना मैं किससे करूं। Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. तेरे कामों की तुलना मैं किससे करूं। Thank you, Lord Jesus, for this beautiful time you have given us once again, O Lord Father. We thank you, Lord Father, because we know, Lord, that you are present here in our midst. For your word says, where two or three are gathered in your name, you are there, O Lord. We thank you, Lord Father, for everything that you are doing in our life. And we thank you for each and every one of us who is present here, O Lord Father. Whoever couldn't come today, O Lord, help them to come next time, O Lord Father, to learn for more of your word, O Lord Father, to know more about you and to get closer to you, O Lord Father. We thank you, Lord Father, for this beautiful time once again. We commit the rest of the time into your hands. In Jesus' name we pray.
आइए हम वचन में जाएंगे। आज का वचन के लिए हम जो पिछले हफ्ते आत्मिक वरदानों के बारे में जो सीख रहे थे, उसी के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। कुछ और बातें हैं वो सीख कर, जैसे प्रभु हमें अगुवाई करता है, इन सब वरदानों को हमारे जीवन में जो वरदान प्रभु ने दिया वो पहचान कर, वो हो सकता है बाइबल स्टडी में या कलीसिया में, कोई भी प्रार्थना सभा में आप इन वरदानों को इस्तेमाल कीजिए। ओके, आत्मिक वरदानों का विषय में ये जो स्टडी है, ये जो अभ्यास है करने का मेरा मकसद ये है कि केवल आप सुनकर वरदानों का ज्ञान प्राप्त करके रहने के लिए नहीं, परंतु इन वरदानों को आपके रोज के जीवन में आप इस्तेमाल कीजिए प्लीज। ओके, यदि ऐसा नहीं होता तो ये सब अभ्यास व्यर्थ में है। ओके, सो मैं विश्वास करता हूं कि हम सब अपने अपने अंदर जो भी प्रभु ने वरदान दिया है, पहली बात उन वरदानों को पहचानेंगे और इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। आमीन। तो पिछले बार हमने चंगाई के बारे में देखा था। चंगाई जो वरदान के बारे में हमने देखा कि परमेश्वर कुछ लोगों को चिन्ह चमत्कार या चंगाई करने का जो वरदान देता है। कुछ उदाहरण वचन में से हमने देखा कैसे शिष्य लोग, कैसे यीशु मसीह स्वयं चंगाई का वरदान कैसे इस्तेमाल किया। ओके, ये इन वरदानों के बारे में हम विशेष करके वचन में यदि देखेंगे तो बहुत कुछ हमें सीखने मिलेगा। शुरुआत में कैसा था, ओके, क्योंकि आज के तारीख में इन 2020 साल में बहुत कुछ बदल गया है। ओके, हम देखते हैं बहुत कुछ चीज मसीह मंडलियों में, मसीह लोगों के बीच में हम बहुत कुछ चीज देखते हैं। वरदानों का विषय का बात कर रहा हूं मैं, और हमें लगता है कि यह प्रकार सही है। ओके, जरूर कुछ कुछ चीजें सही होगा, लेकिन बहुत कुछ चीज गलत भी है। ओके, इसीलिए मैं उत्साहित करूंगा सभी हम सब वचन में लौट कर जाना। वचन का शिक्षण क्या है वरदानों के विषय में। ओके, यीशु मसीह ने इन वरदानों को किस प्रकार से इस्तेमाल किया, शिष्य लोग ने कैसे इस्तेमाल किया। ओके, ये हमें देखकर हमें तुलना करना है कि आज के तारीख में प्रचारक लोग हो या कोई भी मसीह लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। ओके, प्रार्थना का वरदान हो, प्रचार का वरदान हो, अन्य भाषा का हो, दूसरों को उत्साहित करने का जो वरदान, अलग अलग वरदान, ये कैसे इस्तेमाल करते आज लोग। और पहला कलीसिया जब स्थापित हुआ था यीशु के स्वर्ग जाने के बाद, उस समय पर विशेष करके प्रेरितों का पुस्तक में कैसे इस्तेमाल किया गया अनेक वरदान। ओके, ये हमें लगातार तुलना करना बहुत जरूरी है। और जब हम एक व्यक्ति को देखते हैं, वो टीवी में हो सकता है या स्टेज में हो सकता है, कलीसिया में हो सकता है, बाइबल स्टडी में हो सकता है, किसी को भी जब आप देखते हो प्रभु के दिए हुए वरदानों को इस्तेमाल करते हुए जब आप देखते हो, आप कौन से नजर से देखना है? वचन के द्वारा देखना है। Let the word of God be the scanning machine for you to discern, what is happening in front of you. यदि वो वचन के आधार पर नहीं है तो हमें परखना बहुत जरूरी है कि इसमें कुछ सही नहीं है। उदाहरण के रूप में अन्य भाषा के बारे में हमने विस्तार में सीखा। वचन क्या सिखाता है? जहां पर अन्य भाषा का वरदान इस्तेमाल होता है, वहां पर क्या होना जरूरी है?
अनुवाद होना बहुत जरूरी है। तो कहीं पर भी यदि आप अन्य भाषा कोई व्यक्ति बोलते हुए देखते हैं आप, ओके, तो वहां पर यदि अनुवाद नहीं है तो कुछ तो सही नहीं है। ये पहचान आपको होना बहुत जरूरी है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रचार करने का जो वरदान, ओके, प्रचार ये शब्द नहीं है, उन वरदानों का लिस्ट में जो हमने बहुत सारे वाक्य जो पढ़े थे, परमेश्वर जो आत्मिक वरदान के बारे में जिक्र किया गया है वचन में, वहां पर प्रचार ये शब्द नहीं है। लेकिन यदि आपको याद है तो ज्ञान की बातें और बुद्धि की बातें, परमेश्वर का वचन का ज्ञान, ओके, ये वचन का ज्ञान जो बात करना, समझाना, प्रचार करना, ओके, ये प्रचार में आता है। तो प्रचार ये वरदान वचन में कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया, बहुत सारा वचन है, लेकिन हम 2-3 वचन देखेंगे। प्रेरितों का पुस्तक उसका 2रा अध्याय, प्रेरितों का पुस्तक उसका 2रा अध्याय, Acts chapter 2 verse 14, 14 वाक्य। उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, ए यहूदियों और ये यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। ओके, तो पतरस खड़ा हुआ, खड़ा होकर कहने लगा, वो अपने ऊंचे आवाज, ऐसा लिखा है ना हिंदी में, ऊंचे शब्द से कहने लगा, ऊंचे शब्द से कहने लगा। ओके, और वो जो कहना शुरू हुआ वो खत्म कहां पर होता है? 39 वाक्य में। ओके, तो ये जो 14 वाक्य में खड़ा हुआ पतरस 39 वाक्य तक क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। ओके, उस प्रचार के अंदर मैं नहीं जाना चाहता हूं, विषय में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ओके, पतरस ने पेंतिकोस का दिन पवित्र आत्मा का सामर्थ पाकर खड़ा हुआ। ओके, किसी का आमंत्रण का जरूरत नहीं पड़ा, किसी का बोलने की जरूरत नहीं पड़ा पतरस को कि भाई तू प्रचार कर। ओके, बोलने की जरूरत नहीं पड़ा। ओके, ये वही पतरस है जो यीशु के बारे में गवाही देने से डरता था। यीशु के साथ है ऐसा लोग जानने से शर्माता था। ये पतरस डरता था, यीशु को नकारा 3 बार। ओके, यही पतरस बिना हिचकिचाए, बिना डरे अब खड़ा हुआ। ओके, क्या था वो चीज जो पतरस के अंदर का डर को निकाल दिया? पवित्र आत्मा का सामर्थ। ओके, ये सब आत्मिक वरदानों के बारे में जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, जितने भी वरदान है, ये वरदान उपयोग कब होता है? सामर्थ पाने से। इसलिए मैं पहले भी बाइबल स्टडीज में कई बार मैं कह चुका हूं कि सबसे पहला सामर्थ पाना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा का सामर्थ पाओ। जब सामर्थ पाएंगे आप, तब आपको कोई सिखाना नहीं पड़ेगा, आपको कोई बोलना नहीं पड़ेगा, आप ये करो या वो करो, आपके अंदर से वो उमड़ते आएगा। इट विल स्टार्ट ओवरफ्लोइंग। इफ इट इज हीलिंग, यदि चंगाई का वरदान है, अपने आप जब कोई व्यक्ति को बीमार या कोई अवस्था में देखेंगे, आपका मन पिघल जाएगा। ओके, आप उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होगा, अपने आप हो जाएगा। यदि आपके अंदर वो वरदान है तो किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा या आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत जोर देना नहीं पड़ेगा। ओके,
तो एक ही है वो चीज जो हमारे आत्मिक जीवन को बदल सकता है। हम जिस प्रकार का आत्मिक जीवन जी रहे हैं वो बदलने के लिए एक ही है, वो क्या है? पवित्र आत्मा का सामर्थ। इसीलिए प्रेरितों का पुस्तक उसका पहला अध्याय में यीशु मसीह स्वर्ग जाने के पहले शिष्यों से क्या कहा? जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम अन्य भाषा में बात करोगे। पहला अध्याय का 8वां वाक्य पढ़िए ब्रदर। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। जब तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ पाओगे, आपने जो पढ़ा ब्रदर, आपके बाइबल में दो चीज लिखा है। एक तो जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम क्या? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब हाँ। तुम सामर्थ्य पाओगे। हाँ, पहला चीज आपने पढ़ा सामर्थ पाओगे, बराबर, और दूसरा गवाही बनोगे, राइट? यस, गवाह होगे। क्या सबके बाइबल में वही लिखा है? किसी के बाइबल में ऐसा लिखा है जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम अन्य भाषा बोलोगे या चंगाई करोगे? ऐसा लिखा है किसी के बाइबल में? नहीं। ओके, तो यीशु के शब्दों में यीशु मसीह ने जो कहा, सामर्थ देने वाला व्यक्ति ने जो कहा, उन्होंने क्या कहा? सामर्थ क्यों है या पवित्र आत्मा क्यों है? ओके, पवित्र आत्मा इसीलिए नहीं है कि हम थोड़ा आवाज करें, अन्य भाषा में आवाज करें या 2-3 गीत गाए या चंगाई करके लोगों को आकर्षण करे, ओके, या भविष्यवाणी करे। ये सब यीशु मसीह ने नहीं कहा, लेकिन एक चीज यीशु ने कहा है, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और दूसरा गवाही बनोगे। ओके, तो फिर ये वरदान क्या है? ये सब उसके साथ आता है। अन्य भाषा बोलना, भविष्यवाणी करना, चंगाई करना, प्रचार करना, ये सब अलग अलग वरदान है। ओके, लेकिन ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति बहुत सामर्थी प्रचार कर रहा है, चंगाई कर रहा है यीशु के नाम से, भविष्यवाणी कर रहा है, ओके, परंतु यीशु का गवाह नहीं है, गवाही नहीं है। शायद आप कंफ्यूज होंगे मेरे इन शब्दों से। ओके, ये संभव है कि एक व्यक्ति प्रभु का दिए हुए वरदानों को इस्तेमाल कर रहा है, परंतु फिर भी प्रभु का गवाही नहीं बन रहा है। ये कैसा संभव है? ओके, मैं चंगाई कर सकता हूं यीशु के नाम से, मैं प्रचार कर सकता हूं यीशु के नाम से, लेकिन फिर भी यीशु का गवाह नहीं बन रहा है। ऐसा संभव है? कैसा? यदि मैं चंगाई यीशु के नाम से कर रहा हूं, लेकिन मैं खुद का महिमा ले रहा हूं, प्रभु का महिमा नहीं कर रहा हूं उस चंगाई के द्वारा या प्रचार के द्वारा, ओके, अन्य भाषा में बोल रहा हूं लेकिन वचन के अनुसार नहीं, ओके। आज के तारीख में बहुत सारे मसीह लोग हैं जो कुछ तो बोल रहे हैं जिसका नाम अन्य भाषा बोलते हैं वे, लेकिन अन्य भाषा नहीं है। मुझे ये बोलने में कोई संकोच नहीं है, ओके। वे बोल रहे ऐसा सोचते कि वो अन्य भाषा है, परंतु वो अन्य भाषा नहीं है, ओके। तो अन्य भाषा, हम अन्य भाषा का विषय में आएंगे तब मैं बताऊंगा, ओके। तो हम प्रचार का विषय कर रहे हैं। तो यहां पर यीशु ने कहा
जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम दो चीज, सामर्थ पाओगे और मेरे गवाही बनोगे। ये दो चीज होना बहुत जरूरी है। ओके, आप वरदान कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके, वो हो सकता है आप इस्तेमाल करो, प्रभु के दिए हुए वरदानों को इस्तेमाल करो, लेकिन गवाही बनना बहुत जरूरी है। प्रभु का सामर्थ अंदर होना बहुत जरूरी है। ये सामर्थ वो सामर्थ नहीं है जो केवल बाहर के रूप में, बाहरी रूप में आवाज करता है, लेकिन ये वो सामर्थ है जो निर्भय रहता है, भय नहीं रहता। ओके, प्रभु का नाम ऊंचा करने के लिए भयभीत नहीं रहता, कोई प्रकार का डर नहीं अंदर। ओके, जब परिस्थिति विपरीत रहता है, हमारे विरुद्ध रहता है, when there are circumstances that are against us, okay, but still there is a peace inside us. पिछला शनिवार को जो मैंने विश्राम के बारे में कहा, ओके, जो सबत का विश्राम परमेश्वर ने जो सिखाया, वो विश्राम अंदर कब रहेगा? जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ है तब। ओके, हमारे जीवन के हर परिस्थिति विपरीत होने दो, परंतु अंदर एक विश्राम है। वो विश्राम तब होता है जब प्रभु के ऊपर विश्वास मजबूत रहता है। ओके, वो विश्वास से एक विश्राम और शांति रहता है मन में। ओके, वो देखने से पता चलता है ये व्यक्ति पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरा हुआ है। ओके, और एक बार मैं कहूंगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ आप पाया हुआ है, इसका सबूत क्या है? कि आपके अंदर एक विश्राम होना बहुत जरूरी है। विश्राम, the peace of God that passeth all understanding should rule your heart and mind. If your heart is not in control of the Holy Spirit, then a person cannot claim that he has the power of the Holy Spirit. यदि आपका हृदय, जब मैं हृदय कह रहा हूं, मैं भावनाओं का बात कर रहा हूं, भावनाओं का बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट इमोशंस। ओके, यदि आपका भावनाएं, आपका हृदय पवित्र आत्मा के अधीन में नहीं है, तो हम ये दावा नहीं कर सकते कि हम पवित्र आत्मा का सामर्थ पाया है। कितना भी चिन्ह चमत्कार करने दो वो व्यक्ति, कितना भी बड़ा प्रचार करने दो, हमारा हृदय पवित्र आत्मा का अधीन होना बहुत जरूरी है। बहुत लोग चिन्ह चमत्कार करते हैं, बहुत सामर्थी, बाहर के रूप में सामर्थी प्रचार ऐसा लगता है, लेकिन हृदय जो है, भावनाएं जो है, खुद के भावनाओं में चलते हैं, पवित्र आत्मा के अधीन में नहीं है भावनाएं। ओके, दे डू थिंग्स इन फीलिंग्स, बहुत कुछ भावनाओं से करता है। ओके, बहुत कुछ चीज, गलत स्वभाव, गलत स्वभाव, बड़े बड़े प्रचारकों में भी है गलत स्वभाव। ओके, सो जब पवित्र आत्मा आएगा, सामर्थ पाओगे और गवाही बनोगे, प्रभु का गवाही। तो गवाही, सबसे पहला गवाही कौन से रूप में होना जरूरी है? प्रचार या चिन्ह चमत्कार के रूप में नहीं, लेकिन गवाही पहले जीवन परिवर्तन में होना बहुत जरूरी है। वो है गवाही। फल, आत्मा का फल दिखना बहुत जरूरी है। वरदान के पहले फल आता है। ओके, याद है मैंने आपसे बताया था, यूहन्ना बपतिस्मा, जो लोग बपतिस्मा लेने आ रहे हैं उनसे कहा पहला जाकर योग्य फल लाओ। मन परिवर्तन का फल, जीवन परिवर्तन का फल दिखना पहला जरूरी है, बाद में बपतिस्मा, बाद में सेवकाई, प्रभु के वरदानों को इस्तेमाल बाद में।
यहाँ पर मैं एक सूचना देना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सिद्ध बनने के बाद ही सेवकाई करना चाहिए या प्रभु के वरदानों को इस्तेमाल करना चाहिए। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, ओके। लेकिन क्या हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे? अपने आप को न्याय करो, क्या हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे या हम अभी भी कुछ कुछ बंधनों में है? ओके, तो आत्मिक फल आना बहुत जरूरी है। आत्मा का फल जो परमेश्वर का स्वभाव को दर्शाता है, वो स्वभाव में हम यदि बढ़ रहे, हम सिद्ध नहीं हुए लेकिन प्रभु के स्वभाव में प्रेम, आनंद, ओके, क्षमा करना, धीरज, ये सब स्वभाव में यदि हम धीरे धीरे बढ़ रहे, मतलब पवित्र आत्मा नियंत्रण कर रहा है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य एक व्यक्ति पाया है, उसका चिन्ह या सबूत वो व्यक्ति के अंदर आत्मा का फल होना बहुत जरूरी है। यदि आत्मा का फल है तो वो व्यक्ति प्रभु का गवाही बन रहा है, ओके, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव उनके अंदर दिख रहा है। ये सबूत है। प्रेरितों का पुस्तक उसका 11वां वाक्य, प्रेरितों का पुस्तक उसका 11वां वाक्य, चैप्टर 25 और 26 पढ़िए। या Acts chapter 11 verse 25 and 26। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वह उससे मिला तो उसे अंतकिया लाया और तो ऐसा हुआ। बरनबास सॉल को ढूंढने निकला और सॉल को जब मिला तब बरनबास सॉल को कहां पर लेकर आया? अंतियोक में लेकर आया। आगे पढ़िए। और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंतिकिया में मसीही कहलाए। पौलुस अंतियोक में 1 साल बिताया प्रभु का प्रचार करते हुए, और वचन कहता है अंतियोक इस जगह में चेले लोग सबसे पहले मसीह कहलाए। ऐसा लिखा ना ब्रदर? हाँ, या रीड दैट लास्ट सेंटेंस अगेन। और चेले सबसे पहले अंतिकिया में मसीही कहलाए। मसीह कहलाए, ओके। वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मसीह कहलाए, ओके। The disciples were first called Christians in Antioch, okay. So the disciples did not call themselves as Christians, but they were called Christians by people, those who saw them. शिष्य लोग सबसे पहला मसीह कहलाए, अंतियोक में कहलाए गए, मतलब किसी और ने शिष्यों को मसीह करके ये नाम दिया। शिष्य लोग खुद नहीं कहा हम मसीह लोग हैं, लेकिन बाकी लोग जो शिष्यों को देख रहे थे, उनके जीवन को देखकर उनके अंदर देखा कि ये मसीह जैसा दिख रहा है। ये चेले लोग, उनके चाल चलन मसीह के जैसे मिलता है, इसीलिए उनको मसीह कहलाया गया, ओके। हम जहां कहीं भी जाते हम लोगों को बोलते हम वी आर क्रिश्चियंस, हम मसीह लोग हैं, लेकिन उसमें कोई गलत नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन हम यहां पर ये सीखते हैं कि लोग हमें क्या कहते हैं। लोग हमें खुद होके, हम बोलने से पहले लोग कहना चाहिए हमारे बारे में ये मसीह लोग हैं। क्यों कहना चाहिए? क्योंकि इस व्यक्ति का चाल चलन और स्वभाव मसीह जैसा मिलता है, ओके। तो पहले पीढ़ी के जो लोग, पहला पीढ़ी मतलब फर्स्ट सेंचुरी क्रिश्चियंस, प्रेरितों का पुस्तक में जो मसीह कहलाए गए जो लोग, शिष्य लोग,
उस समय के लोग जो है, बाकी लोग जो देख रहे हैं शिष्यों को, उन लोग मसीह को भी देखा था। मसीह यीशु ने कैसा सेवकाई किया, कैसा जीवन बिताया, कैसा दुख उठाया, कैसा प्रचार किया, कैसा उन पवित्र आत्मा का वरदानों को इस्तेमाल किया यीशु मसीह ने। ये समाज के लोगों ने देखा है यीशु मसीह को। वही लोग यीशु जाने के बाद शिष्यों को जब देखा, जो शिष्य यीशु जाने के पहले अलग था, अब पवित्र आत्मा का सामर्थ पाने के बाद अलग हो गए। शिष्य लोग अलग हो गए। उन शिष्यों का जीवन देखकर अंत्योक इस जगह में सबसे पहला शिष्य लोग मसीह कहलाए गए। They were called Christians। ये है जो यीशु ने प्रेरितों का पहला अध्याय का 8वां वाक्य में कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाही बनोगे। ये गवाही बना लोग, शिष्य लोग, और लोगों ने उनको मसीह कहा। That is what is expected. Even before you start using the gifts of God, आप पवित्र आत्मा के वरदानों को इस्तेमाल करने के पहले एक गवाही होना, जीवन के द्वारा लोग देखने दो कि हम एक मसीह व्यक्ति है। लोग कहने दो, लोग पहचानने दो, और लोग आपको बुलाने दो। ओके ब्रदर, मेरे लिए प्रार्थना करो। आपके पड़ोसी लोग आपका जीवन देखकर, आपके परिवार का जीवन देखकर, आपके बच्चों के जीवन देखकर, उन लोग सामने से आकर उनके समस्याओं में आपको बुलाकर मदद मांगेंगे। क्यों? आपने सामने से कभी नहीं कहा कि मैं मसीह हूं, कभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं। उन लोग आपका जीवन देखकर आपके पास आएंगे, जरा प्रार्थना कीजिए, मुझे लगता है आप लोग कुछ अलग लोग हैं। ओके, लेट देम आइडेंटिफाई। दैट इज द सक्सेसफुल क्रिश्चियन लाइफ। ओके, तो गवाह बनना सबसे पहला, फिर प्रभु के दिए हुए वरदानों को इस्तेमाल करना। यदि वरदानों को हम इस्तेमाल करते, गवाही नहीं बनते, ओके, जीवन में स्वभाव सही नहीं है, तो उन वरदानों का कोई फायदा नहीं। लेकिन स्वभाव सही है, वरदान इस्तेमाल करेंगे, प्रभु की महिमा होगा वहां पर। ओके, तो प्रचार में लौट के आएंगे। दूसरा अध्याय का 14 वाक्य में हमने पढ़ा, पतरस वहां पर खड़े होकर प्रचार करने लगा। ओके, पवित्र आत्मा का सामर्थ पाकर पतरस प्रचार किया, और प्रचार के अंत में लोगों के अंदर एक प्रश्न आया। क्या प्रश्न आया? 37 वाक्य, 37, Acts chapter 2 verse 37। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, ए भाइयों, हम क्या करें? हाँ, तो सुनने वाले, पतरस के इस प्रचार को सुनने वाले लोग, उनको कैसा अनुभव हुआ? आज का प्रचार बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता है, प्रभु का अनुग्रह के बारे में, प्रभु दया दिखाता है, प्रभु मैं जो भी पाप करूं, जितना भी पाप करूं, कैसा भी जीवन बिताऊं, प्रभु को चलेगा, प्रभु क्षमा करता है, प्रभु बहुत प्रेमी पिता है, मैं कैसा भी जीवन जीऊं चलेगा। ऐसा प्रचार था? नहीं। लेकिन पतरस का प्रचार सुनकर, ओके, सुनने वालों के हृदय छिद गए। They were cut to the heart। क्योंकि उनके हृदय छिद गए, उन्होंने कहा, लोगों ने कहा, हम क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? और पतरस ने क्या कहा? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हाँ, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ, पहला मन फिराओ, अपने अपने पापों को कबूल करो, फिर तुम पवित्र आत्मा का वरदान को पाओगे, सामर्थ को पाओगे। ओके, तो लुक एट द ऑर्डर इन विच वी लर्न फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड।
बाइबल कौन सा ऑर्डर हमें सिखाता है? ओके, पहला क्या होना चाहिए? मन फिराना, पश्चाताप करना। ओके, मैं पापी हूं करके कबूल करना। ये कहने के लिए पतरस हिचकिचाया नहीं, या बाकी शिष्य लोग कभी हिचकिचाया नहीं उनके प्रचार में कहने के लिए कि हम पापी है, आप लोग पापी है, पाप से मन फिराओ, पश्चाताप करो। ओके, लेकिन आजकल मसीह मंडलियों में प्रचारक लोग अक्सर ये हिचकिचाते हैं बोलने के लिए, पाप से मन फिराओ करके। आपने जो किया वो गलत है। नेतन जो भविष्यवक्ता, दाऊद जब राजा था, ओके, नेतन भविष्यवक्ता राजा दाऊद के पास आकर एक उदाहरण देकर उसके पाप का पश्चाताप करने के लिए उसको सीधा मुंह पर देकर कहा। ओके, हिचकिचाया नहीं बोलने के लिए। भले दाऊद राजा है, लेकिन बत्शेबा के साथ व्यभिचार का जो कार्य दाऊद ने किया, ओके, नेतन भविष्यवक्ता ने ये नहीं सोचा वो राजा है, वो परमेश्वर का अभिषेक्त व्यक्ति है, मैं क्यों उसका न्याय करना चाहिए, व्हाई शुड आई जज हिम। ऐसा भविष्यवक्ता नेतन ने नहीं कहा या ऐसा नहीं सोचा। ओके, मैं क्यों ये कह रहा हूं? क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है जब मसीह लोगों को मैं ये कहते हुए देखता हूं कि कोई प्रचारक है या कोई परमेश्वर का दास है या कोई भी विश्वासी, साधारण विश्वासी भी होने दो, कुछ यदि गलत किया है, ओके, उस गलत के बारे में जिक्र करना, अक्सर विश्वासी लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्रदर ऐसा मत बोलो, हम न्याय नहीं करना चाहिए, प्रभु न्याय करने दो उसको। ओके, यदि उसने गलत किया है, कुछ गलत बोला है, तो प्रभु न्याय करेगा। वी शुड नॉट जज। ये गलत है, ये गलत है। ओके, हम कहना चाहिए, प्रभु के प्रेम से कहना चाहिए। ओके, यदि कुछ गलत है, वो प्रभु ने आपको दिखाया है, तो मसीह प्रेम से हमें वो गलत चीज कहना चाहिए। नेतन भविष्यवक्ता ने दाऊद से कहा, ओके, जिस व्यक्ति ने ये पाप किया है वो व्यक्ति तू है, सीधा कहा। तब दाऊद ने पश्चाताप किया। जरा सोचकर देखो, यदि नेतन भविष्यवक्ता नहीं कहा होता, ये अगर ऐसा सोचकर बैठा होता तो मैं कौन हूं मैं न्याय करने के लिए, प्रभु न्याय करने दो, तो दाऊद कभी पश्चाताप किया ही नहीं होता। हमारे सामने भजन संगीता 53 या 51 51 भजन संगीता 51 हमारे पास नहीं होता, क्योंकि भजन संगीता 51 में दाऊद का पश्चाताप वहां पर लिखा है, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड एंड रिन्यू अ राइट स्पिरिट विद इन मी। ये तब की बात है जब नेतन भविष्यवक्ता ने दाऊद के पास जाकर उसके पाप को उसके सामने दिखाया कि तूने पाप किया है। ओके, तो परमेश्वर जब हमारे हृदय में कुछ बात डालता है तो वो कहना बहुत जरूरी है। ओके, पतरस ने कहने से नहीं हिचकिचाया, तुम सब अपने अपने पाप से मन फिराओ और फिर तुम परमेश्वर के दान को पाओगे, वरदानों को पाओगे। ओके, और तब लोगों ने मन फिराया, लोगों ने मन फिराया। और ये जो प्रचार है, ये केवल प्रचार नहीं है, केवल ज्ञान की बातें नहीं है, लेकिन प्रचार के साथ साथ भविष्यवाणी भी आता है। याद करो, मैंने आप लोगों से कहा था, भविष्यवाणी, भविष्य के बारे में कहना ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने जो कहा या आपको दिखाया कुछ बोलने के लिए, वो कहना, परमेश्वर के शब्दों को जैसा है वैसा बिना मिलावट किए कहना, वो भविष्यवाणी है। इसलिए मुझे हिंदी का जो
प्रोफेसी का जो हिंदी अनुवाद भविष्यवाणी वो मुझे पसंद नहीं है. ओके, वो सही शब्द नहीं है. प्रोफेसी इज foretelling what God has spoken to you, you are speaking to the people. जो प्रभु ने आपके हृदय में डाला वो बातें कहना. ओके, वो भविष्यवाणी है. वो जरूरी नहीं है कि भविष्य की बातें ही है, लेकिन अभी जो जरूरत है वो बातें कहना. ओके, सो प्रचार के साथ साथ भविष्यवाणी भी आता है. प्रभु की बातें, प्रभु की शब्द, वचन को कहना. ओके, तो पतरस ने प्रचार किया 37 38 हमने पढ़ा. 4 अध्याय में आएंगे. प्रेरितों का पुस्तक 4 अध्याय, उसका 8वां वाक्य पढ़िए. तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, ए लोगों के सरदारों और पुरानियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हम उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है. हाँ, एक व्यक्ति को यीशु के नाम से चंगाई किया, उसका परिणाम भुगत रहे पतरस और बाकी शिष्य. और तब समाज के सरदारों के सामने, in front of the rulers of the people, they were brought. Okay, just आप कल्पना कीजिए उस समय का समाज में जो लीडर्स है, जो रूलर्स है, जैसे आज के मुख्यमंत्री, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या पुलिस अधिकारी लोग. ओके, आपने यीशु के नाम से जाकर कुछ किया, उसके लिए आपको अधिकारी लोगों के सामने खड़ा किया गया. आपका प्रतिक्रिया क्या होगा? ओके, क्या आप ठीक है मैं अभी से नहीं करूंगा ऐसा बोलेंगे, या पतरस और बाकी शिष्यों से हमें सीखना बहुत जरूरी है. पतरस ने क्या कहा? यदि हम आज 9वां वाक्य पढ़िए. यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है. पतरस कह रहा है यदि हमने इस व्यक्ति को चंगाई किया, इसके लिए हमें यहाँ पर खड़ा किया गया है, तो तुम लोग मतलब किसको कह रहा है पतरस? अधिकारी लोगों को कह रहा है. प्रभु का गवाही देने से हिचकिचा नहीं रहा है, डर नहीं रहा है. तुम लोग ये जान लो कि ये व्यक्ति भला चंगा यहाँ पर खड़ा है. किस वजह से? यीशु नाजरी के नाम से वो चंगाई हुआ है. ओके, ये वही पतरस है जो यीशु जब गिरफ्तार हुआ तब 3 बार उनको नकारा था. ओके, नहीं मैं उसको नहीं जानता. ये वही पतरस है जो कह रहा है कि यीशु के नाम से है ये जो हुआ है, आपको जो करना है कर लो. कहने का अर्थ वही है ना, आप मुझे मार डालो, जो भी करो, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कहने के लिए कि यीशु के नाम से ये हुआ है. ओके, कहां गया पतरस का डर, शर्म वगैरह वगैरह? पवित्र आत्मा का सामर्थ, ये है जीवन का टर्निंग पॉइंट. इसीलिए मैं रुकूंगा नहीं बार बार कहने से. पवित्र आत्मा का सामर्थ पाओ. ओके, कैसा पता चलेगा कि आपने सामर्थ पाया है कि नहीं? ओके, ये शब्दों में मैं जिक्र नहीं कर पाऊंगा. आपको अनुभव होगा कि आपने सामर्थ पाया है. आपको अनुभव होगा, क्योंकि सबका अनुभव अलग है. पवित्र आत्मा का सामर्थ जो व्यक्ति पाता है वो एक ही तरीके से नहीं पाता है.
अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पाता है, लेकिन जब तुम पाओगे तब तुम प्रभु के गवाह बनोगे, गवाह बनोगे। वो गवाह बनना जब आपके अंदर दिखाई देगा ना, आप आपके दोस्तों को, आपके पड़ोसियों को, आपके काम करने के क्षेत्र में लोगों को बोलने से आप हिचकिचा नहीं रहे हो, आप डर नहीं रहे हो। कुछ तो अंदर है जो आपके अंदर भर गया है, जो ओवरफ्लो हो रहा है, जो उमड़ रहा है, आप रोक नहीं पा रहे हो। प्रभु का प्रेम के बारे में बताने के लिए आप रोक नहीं पा रहे हो अपने आप को। तब आपको ये पहचान होना जरूरी है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपने पाया है। ओके, बहुत सारे ऐसे मसीह मंडली है, कलीसिया, बहुत सारे ऐसे कलीसिया है जो ऐसे सिखाते हैं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। ये कैसा पता चलेगा आपको? जब आप अन्य भाषा में बोलोगे तब पता चलेगा। ये गलत है। ओके, अन्य भाषा एक ही सबूत है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, ऐसा सिखाने वाले लोग हैं। ये गलत है। पवित्र आत्मा का सामर्थ पाया है, उसका सबूत अन्य भाषा नहीं है, उसका सबूत चिन्ह चमत्कार आप कर रहे हो वो नहीं है। ओके, आप स्वयं व्यक्तिगत जीवन में पवित्र हो रहे हो, पवित्रता में बढ़ रहे हो। आप जो पाप पहले कर रहे थे, जिन चीजें जो आप पहले कर रहे थे, अब आपको करने में कोई दिलचस्पी नहीं हो रहा है, कोई मजा नहीं आ रहा है, आपको घृणा हो रहा है वो गलत चीज करने से। ये परिवर्तन का सबूत है। पवित्र आत्मा का सामर्थ पाया, उसका सबूत है। दूसरा, आप गवाही बन रहे हो। शब्दों में हो सकता है गवाही, या जीवन के द्वारा गवाही, लेकिन गवाही दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। ओके, बाहर कुछ और दिख रहा है, लेकिन शब्दों में हम बोल रहे हैं कि मैं गवाही बन रहा हूं, ये गवाही नहीं है। लेकिन गवाही है तो वो दिखना चाहिए। ओके, कार्य में दिखना चाहिए। तो पतरस यहाँ पर अधिकारियों के सामने यीशु के बारे में बोल रहा है। ये भी एक प्रकार का प्रचार है। ओके, ये भी एक प्रकार का प्रचार है। अभी यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा। प्रेरितों का पुस्तक में पहला कलीसिया जब स्थापित हुआ, ओके, उस समय के पहले पहले जो विश्वासी लोग हैं ना, उनके बीच में प्रचार केवल कलीसिया के अंदर या मंदिर में स्टेज में प्रचार माइक लेकर, वो नहीं था केवल प्रचार। वो भी एक प्रकार का प्रचार था, लेकिन ज्यादातर प्रचार लोगों के बीच में बाहर था, अधिकारियों के सामने था प्रचार। ओके, तो हम जो प्रचार बोलते हैं और जो हमें सुनने बहुत अच्छा लगता है, अभी भी ये जो बाइबल स्टडी चल रहा है, ओके, हमें इस प्रकार का बाइबल स्टडी में संतुष्टता नहीं होना चाहिए। बाइबल स्टडी का ये जो प्रचार अभी चल रहा है, या संडे को जो पास्टर जेकब प्रचार करते हैं, ये सब बहुत अहमियत है, ये जरूरी है, हम जारी रखेंगे। लेकिन संतुष्ट मत हो जाओ इस प्रचार में। हम सबके अंदर से एक प्रचार निकलना चाहिए। ओके, वो प्रचार जरूरी नहीं है कि आप रोड पे खड़े रह के आप माइक लेके बोल रहे हो सकता है आप अकेले में आपके दोस्त के साथ एक वॉक में आप सड़क में चल रहे हो आपके दोस्त के साथ, और उस दोस्त के साथ आपने कुछ बात को छेड़ा मसीह के बारे में, बाइबल के बारे में, और आप प्रभु के बारे में बोल रहे हो। वो बोलना, उसको प्रचार बोलता है। आपने प्रचार किया आपके दोस्त को। आमीन। यीशु मसीह का जी उठने के बाद इमाउस की तरफ दो व्यक्ति जा रहे थे, और वे दो व्यक्ति बात करते करते जब जा रहे थे, रास्ते में यीशु मसीह उनके साथ जुड़ गया उस यात्रा में। और वचन कहता है उस यात्रा में यीशु मसीह पूरा बाइबल उनको प्रचार किया। बातों बातों में हो गया प्रचार। वचन में से यीशु ने बहुत कुछ सिखाया उनको, और उन लोगों को पता भी नहीं चला कि ये यीशु मसीह है। लेकिन बाद में उनको याद आया, क्या वो जो हमसे बात किया था, क्या वो मसीह तो नहीं है? उस प्रकार का एक ख्याल उनको आया, बाद में एहसास हुआ।
ओके, तो जो भी आप आपके दोस्तों के साथ बात करते हो ना, यीशु के बारे में बताते, वो उस समय शायद असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में उनको एहसास होगा। बाद में पवित्र आत्मा सही वक्त पर आपने जो बीज बोया वो फल बाद में आ सकता है। ओके, तो इसीलिए प्रचार केवल संडे, रविवार सीमित नहीं है, ओके, या बाइबल स्टडी में सीमित नहीं है, लेकिन आपके रोज के दैनिक जीवन में चलते फिरते वक्त प्रचार लगातार चलता है। ओके, ये है पहला कलीसिया में पाया गया जो प्रचार का वरदान, परमेश्वर का ज्ञान का वरदान, बुद्धि की बातें कहते रहना लोगों को। ओके, दैट इज प्रीचिंग। और ये प्रीचिंग के साथ जुड़ा हुआ है भविष्यवाणी। तो वही उदाहरण मैं कहना चाहता हूं, जहां पर आप अपने दोस्त के साथ रास्ते में चल रहे हो या ऑफिस में बैठे हैं, थोड़ा फ्री टाइम है, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई किया, आपने यीशु के बारे में बताया, वचन में से कुछ बातें बताया आपने, और वो बताते वक्त ओके, ऐसा कुछ बात उस आपके दोस्त के जीवन में जो प्रभु आपसे कह रहा है, आपने बताया, वो और कुछ नहीं है, वो भविष्यवाणी है। ओके, भविष्य की बातें नहीं, लेकिन प्रभु ने कुछ आपके कान में डाला, वो आप बिना शक किए आप उस वक्त उस व्यक्ति को बोलते हो। तो प्रभु की वाणी को सुनाना वो है भविष्यवाणी या प्रोफेसी। टू से what God has put in your ears about your friend, okay, that is prophecy, that is prophecy. Okay, पिछले हफ्ते मैंने चंगाई के विषय में एक उदाहरण आपको बताया। ओके, मेरे खुद के जीवन से मैंने आपको बताया। मैं और एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ये विवाह की मेरे शादी की पहली की बात है। उसके पहले जब मैं यहाँ पर एक सुबह हमारे परिवार का जो मॉर्निंग प्रेयर होता था, ओके, उस समय पर जब सुबह का प्रार्थना, मैं और मेरे मम्मी और डैडी, हम 3 जन प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना होने के बाद मैं अपने रूम में आया, यही रूम में जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ। तब मेरे दोस्त के बारे में मुझे बहुत मेरे मन में, मेरे हृदय में बहुत जोर से एक विचार आया। वो एक अलग ही एक अनुभव था। मेरा दोस्त जिसके परिवार वाले अविश्वासी है, ओके, वो दोस्त विश्वासी था, अभी भी है, लेकिन उसके परिवार वाले, वो पंजाबी बैकग्राउंड का है, लेकिन उसकी माँ और उसकी बहन, मेरा दोस्त की माँ और उसकी बहन, माँ एक टीचर थी, लेकिन टीचर का जॉब चला गया, और दोनों माँ और बेटी बहुत अल्कोहल, दारू पीते थे। ओके, ये ताजुब की बात है, दोनों स्त्री होकर भी, महिला होकर भी उन लोग दारू पीते थे। ओके, तो मेरा इस परिवार के साथ एक अच्छा रिश्ता था, उन लोगों को सुसमाचार पहले सुनाया था। लेकिन इस दिन, जिस दिन का मैं जिक्र कर रहा हूं आपको, उस दिन सुबह को करीब 7 बजे के आसपास सुबह मेरे अंदर बहुत ऐसा एक जोर से एक विचार आया कि उन लोगों को, क्योंकि उन लोग सच्चाई सुनकर भी उस नशे में डूबते जा रहे थे, तो मेरे मन में ऐसा प्रभु ने एक विचार डाला, जाकर उनको चेतावनी देना। ओके, और मैं समय नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, मैं सीधा मेरा बाइक निकाला और बहेंदर में उन लोग रहते थे। बहेंदर में मैंने उनके घर पर गया, घंटी बजाया, और उन लोग सो रहे थे। ओके, उनको उठाया, मैंने उठाकर वहां पर बैठा मैंने। अब मैं जब मुड़कर जब मैं देखता हूं, वो जो कार्य मैंने किया बहुत ही अजीब था, लेकिन मैंने किया। ओके, उनको उठाकर बिठाया और मैंने प्रभु के प्रेम से मैंने उनको ये चेतावनी दिया। मेरे दोस्त के माँ को मैंने कहा, आप यदि ये पीने का नहीं छोड़ेंगे, ओके, यदि नहीं छोड़ेंगे और आपके बेटी को भी आप पिला रहे, ओके, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप आपके बेटी को आपके सामने मरते हुए आप देखेंगे।
ओके और फिर मैंने उनसे कहा, मैं यहाँ पर मृत्यु का दूत देने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं आपको ये कहने के लिए आया कि प्रभु आपसे आज भी प्रेम करता है, वो मरने से आप रोक सकते हो यदि आप पश्चाताप करेंगे तो। ये कहकर मैं आ गया। ओके कुछ साल के बाद उनकी बेटी गुजर गई, उस पीने के उस आदत में वे मर गई, और बाद में कुछ समय के बाद माँ भी मर गई। ओके तो ऐसा कभी कभी प्रभु आपके दिल में डालता है। हो सकता है एक चेतावनी वाली बात हो, किसी को कहना है, हो सकता है कुछ उत्साहित वाली बात हो। ओके उसी समय की बात है। एक दिन मैं सड़क में चल रहा था, और चलते वक्त एक अनजान व्यक्ति सामने से आ रहा है। बहुत लोग ऐसे चल रहे हैं, लेकिन एक अनजान व्यक्ति सामने से आ रहा है। He just passed by, but when I saw his face, मुझे ऐसा लगा कि इसके जीवन में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है। मुझे ऐसा लगा उस वक्त, और बहुत ही सामर्थी तरीके से मुझे ऐसा लगा अंदर। ओके और ये अनजान व्यक्ति है, चेहरे से ऐसा लगा मुझे। मैं उसको वहां पे रोका और मैं उसको प्रभु के बारे में बताया। मैं उसको कहा कि पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा समस्या है, तकलीफ है। ओके यीशु के बारे में मैंने उसको वहां पे सुसमाचार बांटा और मैं वहां से निकल पड़ा। ओके तो मैं ये उदाहरण आपको क्यों दे रहा हूं कि भविष्यवाणी, प्रोफेसी इज whatever God has told you right now, something you just say it, that is prophecy. प्रभु का वाणी सुनाना। ओके और भविष्य वक्ता ये केवल पुरुषों का काम नहीं है। ओके मुझे सुनने वाले सभी सिस्टर्स, मैं आप लोगों को कहता हूं कि प्रभु ये वरदान सिस्टर्स को भी देता है, स्त्रियों को भी देता है। ओके देयर आर प्रोफेटेस इन द बाइबल। लुक एट लूक चैप्टर 2। लूका का दूसरा अध्याय निकालेंगे। लूका का दूसरा अध्याय, उसका 36 वाक्य पढ़िए। 36। अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनूएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। 37। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। 38। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बात जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। हाँ देखो ये कौन सा समय है, कौन सा घटना है। यीशु का जब जन्म हुआ, यीशु उस बालक को लेकर यूसुफ और मरियम मंदिर में गया। वहां पर ये स्त्री अन्ना नामक स्त्री, ये एक भविष्यवक्ति थी। ओके और अन्ना ने क्या किया? कुछ नहीं किया, ज्यादा कुछ नहीं किया। 38 वाक्य पढ़ो क्या किया उन्होंने। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु को धन्यवाद करने लगी। हाँ। और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बात जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। उस बालक के विषय में हर एक यहूदियों को बातें करने लगी जो छुटकारा का राह देख रहे थे, मतलब मसीहा का जो राह देख रहे थे, उन लोगों को अन्ना नामक भविष्यवक्ति ने बात किया। क्या बात किया होगा? कि ये बालक है जिनका राह आप लोग देख रहे हैं, ये है मसीहा। ओके तो परमेश्वर ने जो कहा वो कहना। It might be as small as this job. She is a prophetess and she prophesied. What did she prophesy?
everything about Jesus for all those who were waiting for the redemption. Okay, looking at Jesus, the child, she prophesied, she spoke to the people. So लोगों को आह्वान करना, आह्वान बोलते हैं ना ब्रदर शब्द, हाँ, आह्वान, या लोगों को आह्वान करना, to make known to people what is the truth. That is the job of a prophet or a prophetess. So I want to encourage all the sisters here, okay, that because मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा एक भावना, एक मनोविचार हो सकता है मसीह लोगों में, स्त्रियों में, कि भविष्यवक्ता या ऐसे सब सिर्फ पुरुष लोग करना चाहिए, हम नहीं, हम सिर्फ प्रार्थना का वरदान नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। वचन में है भविष्यवक्ति, ओके, तो परमेश्वर यदि आपको ये वरदान देता है, इस्तेमाल कीजिए प्रभु के महिमा के लिए, ओके। और एक उदाहरण देखेंगे, प्रेरितों का पुस्तक उसका 21 अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 21, प्रेरितों का पुस्तक 21 अध्याय, एक्ट्स 21 वर्स 9 and 10। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदियों से आया। पढ़ो। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। बस जब हम बस 8वां वाक्य पढ़िए, 8वां वाक्य। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में जो 7 में से एक था जाकर उसके यहाँ रहे। ओके, पौलुस प्रेरितों का पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति लूकोस है, लूका कहता है कि हम वहां पर आए, सिसीरिया में आए, ओके, और पौलुस भी था लूका के साथ, ओके, और आकर किसके घर में रहे? फिलिप्पुस नाम का एक सुसमाचारक, ओके, एक इवेंजलिस्ट जिसका नाम था फिलिप, उसके घर में रहे। और ये इवेंजलिस्ट जो फिलिप है, उसके 4 बेटियां थे। अभी 9वां वाक्य पढ़े। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। बस 4 कुंवारी पुत्रियां। तो मैं ऐसा अनुमान लगाना चाहता हूं कि कुंवारी पुत्रियां मतलब बहुत जवान रहेंगे, जवान लड़कियां हैं, विवाह नहीं हुआ है, ओके। तो इतने जवान उम्र में 4 भविष्यवक्तियां हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का वरदान पाया हुआ, ओके। So that is an encouragement to all our young people, okay, even in a young age, okay, you can be filled with the Holy Spirit and have the gift of the Spirit. Identify your gift, what God has given, and start using it, okay. तो ये 4 भविष्यवक्तियां जो फिलिप्पुस की बेटियां थे, ओके, और फिर और एक भविष्यवक्ता का बात यहाँ पर जिक्र किया गया है, अगबस। ये अगबस भविष्यवक्ता ने क्या कहा, पौलुस को देखकर क्या कहा? पौलुस के कमर पर बांधा हुआ जो क्या बोलते हैं, बेल्ट, कटिबंध, ओके, बेल्ट, ओके, बेल्ट को पकड़कर अगबस ने कहा, ये बेल्ट जिसका है वो व्यक्ति, पवित्र आत्मा मुझसे कहता है वो व्यक्ति, ओके, अन्य जाति के हाथ में सौंपा जाएगा। मतलब इस व्यक्ति के जीवन में खतरा है। पढ़िए 11 वाक्य, फ्रॉम thus says the Holy Spirit from there। पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। तो
पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अगबस पौलुस के विषय में कहता है कि यरूशलेम में कुछ लोग रुक कर बैठा है, पौलुस को बांधकर उसको अन्य जाति के हाथों में सौंपने के लिए, मतलब पौलुस के लिए सताव रुका है। परसिक्यूशन इज अवेटिंग फॉर पॉल। ओके, तो यहां पर एक भविष्यवक्ता है जो भविष्य के बात कह रहा है, जो पौलुस के साथ होने वाला है। ओके, सावधान कर रहा है पौलुस को। और 4 भविष्यवक्तियां है जो परमेश्वर का सेवकाई उस वरदान को इस्तेमाल करते हुए कर रही है। और फिर फिलिपुस का जिक्र यहाँ पर किया गया है 8वां वाक्य में, जो सुसमाचारक है। तो कितने सारे वरदानों का इस्तेमाल हो रहा है। ओके, प्रेरितों का पुस्तक जो है ना, वरदानों से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा का वरदानों से भरा हुआ है। अन्य भाषा का वरदान, सुसमाचारक का वरदान, प्रचार करने का, ज्ञान की बातें, चंगाई का, चिन्ह चमत्कार का, भविष्यवक्ता, ये सब अनेक वरदान, मदद करने का वरदान, प्रबंध करने का वरदान, ये सब प्रेरितों का पुस्तक में भरा हुआ है। ओके, तो प्रेरितों का पुस्तक को मैं किस प्रकार से देखूंगा? बहुत ही क्या बोलते हैं, इट्स अ वेरी लाइवली चर्च, लाइवली क्रिश्चियंस। क्या बोलेंगे हिंदी में? जीवित कलीसिया, जीवित लोग। हाँ, जीवित कलीसिया और जीवित शिष्य लोग या मसीह लोग, कभी बिना कुछ कार्य किए नहीं बैठे हैं। सब लोग कुछ ना कुछ सेवकाई में, कुछ ना कुछ उनका योगदान है, कार्य चल रहा है। केवल संडे टू संडे नहीं, ओके, लेकिन हर दिन प्रभु का कार्य चल रहा है। केवल पास्टर के द्वारा नहीं, अगुवाइयों के द्वारा नहीं, हर विश्वासी लोग अपने अपने वरदानों को पहचान कर कार्य में लगे हैं। इट इज अ सुपर लाइवली बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ओके, केवल एक व्यक्ति के ऊपर वो काम मत सौंपो या ऐसे अपेक्षा मत रखो। ओके, और भी कुछ वरदानों को सीखना है, मुझे बताना था, लेकिन समय नहीं है। लेकिन प्रभु की इच्छा है तो हम अगला ट्यूसडे को बाकी के वरदान हम देखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ सभी को, ओके, आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले अभी आगे के जो भी हफ्ते, जितने भी समय हम बाइबल स्टडी में मिलेंगे, ओके, हमारा जो मीटिंग का जो स्टाइल है या तरीका है वो बदलने वाला है। ओके, वो ऐसा बदलेगा, ज्यादा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों में जो भी वरदान है वो इस्तेमाल करो। एक उदाहरण के रूप में मैं कहूंगा, आपको उदाहरण देता हूं। जैसे हम मीटिंग जब 7 बजे शुरू होता है, ओके, हम प्रार्थना करते हैं, आराधना होता है, उसके बाद प्रार्थना का समय होता है, थोड़ी देर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। शनिवार रहता है तो प्रार्थना का समय नहीं रहता है, लेकिन वचन में जाते हैं हम डायरेक्ट, बच्चों का वचन का समय रहता है। ये सब जो प्रोग्राम्स हमारे बाइबल स्टडी में रहता है वो चालू रहेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन आराधना के समय में, जैसा हमने 2 गीत लिया आज, पिछले कुछ हफ्तों से हम 2 गीत ले रहे हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं तो इसको मूल अर्थ में मत लेना, लेकिन उदाहरण के रूप में, यदि पहला गीत खत्म हुआ, पहले गीत खत्म होने के बाद दूसरा गीत शुरू होने के पहले जब हम पहला गीत गाते हैं, यदि आप सच्चाई और आत्मा में यदि आप गाएंगे, आप प्रभु के साथ संपर्क में रहेंगे उस गीत के समय पर, आत्मा में यदि आप रहेंगे, प्रभु आपके हृदय में यदि कुछ वचन डालता है, कुछ याद दिलाता है, वो हो सकता है कुछ वचन है, तो वो गीत खत्म होने के बाद वो वचन जैसा वैसा ही आप सुनाओ, सिर्फ बोलो, जस्ट रीड दैट वर्ड्स, और या आप सिर्फ वो वचन बोलो,
या तो आप वचन बाइबल खोल के पढ़ो वो वचन, या आपको आता है तो वो वचन आप बिना देखे बोलो, बोलकर बस, और कुछ नहीं। आपको प्रचार नहीं करना है, आपने कुछ क्या बोलते एक्सोर्टेशन आपने नहीं दिया, लेकिन केवल वो वचन बोला, शांत रहा, क्योंकि आराधना अगुवाई करने वाला व्यक्ति अगला गाना गाने जा रहा है। तो आपके हृदय में प्रभु ने यदि एक वचन डाला, उस समय पर बोलो, वो भविष्यवाणी है। प्रभु किसी से कुछ तो बात करना चाहता है, इसीलिए आपके हृदय में डाला। So be sensitive what the Holy Spirit is going to speak to you. हो सकता है आराधना के समय पर, उस पहला गीत के समय पर प्रभु आपको किसी के बारे में याद दिलाता है प्रार्थना करने के लिए। हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, हो सकता है इस संसार में, या कलीसिया के कोई व्यक्ति के बारे में, या पास्टर के बारे में। जैसा वो पहला गीत हुआ, संक्षेप में एक शब्द में प्रार्थना कीजिए, दैट्स ऑल। हो सकता है 10 सेकेंड 20 सेकेंड का प्रार्थना हो, ज्यादा लंबा नहीं। जैसा पास्टर जेकब ने कुछ हफ्ते पहले कहा, हमारा आराधना या जो मीटिंग है, गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर। वो ऑर्डर से होना जरूरी है। तो जो भी बीच में पवित्र आत्मा के अगुवाई से जो आप करते हो, वो ऑर्डर को मिस नहीं होना चाहिए, गड़बड़ी नहीं लाना चाहिए, लेकिन संक्षेप में करके हमें शांत बैठना चाहिए। हम सब मिलकर उस प्रार्थना में जुड़ जाएंगे और फिर अगला गीत में हम जाएंगे। अगला गीत होने के बाद उस समय पर यदि प्रभु ने कुछ दिल में डाला, आप कह सकते हो, ओके। लेकिन मेक श्योर दैट द होली स्पिरिट हैज स्पोकन टू यू, मेक श्योर दैट गॉड हैज लेड यू, ओके। पवित्र आत्मा ने कहा, ये नाम से हम अपने ही भावनाओं को लेकर हम नहीं करना चाहिए कुछ भी चीज, सिर्फ उस बात का सावधानी हमें रखना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम वरदानों को इस्तेमाल करें। ये सही नहीं होगा कि मैं आपको वरदानों के बारे में सब सिखाया, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए आपको मंच नहीं दिया, समय नहीं दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो let the meeting be open for you to exercise God's given spiritual gifts. Use the spiritual gifts, okay? यदि आराधना के समय पर प्रभु आपको अन्य भाषा का वरदान दिया है, तो आप अन्य भाषा में बोल सकते हो आराधना के बाद, ओके? लेकिन अनुवाद भी करना है, आमेन। तो यदि एक्सोर्टेशन उस समय पर, यदि आपके दिल में प्रभु ने कुछ उत्साहित करने के लिए, किसी को उत्साहित करने के लिए कुछ कहा है, तो आराधना होने के बाद आप पूछ सकते हो, ब्रदर मुझे कुछ उत्साहित करना है, ओके? तो आप कर सकते हो, सब कुछ संक्षेप में। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। मैंने आप लोगों से ये इसीलिए बांटा क्योंकि आप लोग प्रार्थना पूर्वक कोई भी मीटिंग में आप अटेंड कीजिए, प्रार्थना पूर्वक, ताकि प्रभु आप लोगों को सबको अगुवाई करे, ओके? तब जाकर पूर्णता, परमेश्वर का जो संदेश है केवल वचन के समय पर सीमित नहीं है। प्रभु का संदेश शुरुआत के प्रार्थना से लेकर अंत के प्रार्थना तक भविष्यवाणी के द्वारा, चेतावनी के द्वारा, आराधना के द्वारा और वचन के द्वारा, ऐसे अलग अलग रूप में प्रभु का संदेश जारी रहता है। God's message continues from the first prayer to the last prayer, okay? So let us prayerfully exercise God's gift, God-given gift. May God bless each one of us. प्रभु हम सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। Joseph Pinto brother, can you just pray? हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं, Yes, Lord. धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके सुंदर वचन को प्रभु, क्या आप वचनों के द्वारा प्रभु ना सिर्फ हमें सिखाते हैं, परंतु हमारे हाथों को पकड़कर प्रभु हमें उस पर चलना भी सिखाते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु भाई जोश के द्वारा जो अगुवाई प्रभु आप हमारी करते हैं प्रभु, जिस प्रकार से हम वचन को सुनते हैं और उसको कार्यशीलता में डालने के लिए प्रभु
संवेदनशील तरीके से प्रभु आपको वचनों को प्रभु समझने के लिए प्रभु आपने हम हर एक भाई और बहन को यहाँ पर तैयार किया है, और हर एक भाई और बहन को प्रभु आपने ले आया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिस प्रकार से पौलुस ने पतरस में प्रभु प्रचार किया प्रभु, और सुनने वालों के हृदय छिद गए प्रभु, आज सचमुच में हमारे हृदय छिद गए प्रभु। हाँ प्रभु, हम रविवार की कलीसिया या एक दिन के जब आराधना का समय होता है, या फिर प्रार्थना का समय होता है, या फिर बाइबल स्टडी के अध्ययन का समय होता है, उसी समय नहीं, परंतु हमारा जीवन प्रभु आपके सामर्थ्य के साथ में भरा हुआ है। परंतु वो गवाही प्रभु आज आपने अपने वचनों के द्वारा हमें दिखाई है प्रभु। धन्यवाद करते पिता कि आपने हमें हर एक व्यक्ति को आपके सामर्थ्य से भरा है प्रभु, और हम आपके गवाह प्रभु बने हैं, परंतु इस गवाही को कार्यशीलता में दिखाने के लिए प्रभु सहायता करें। हालेलुया, हालेलुया जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड गॉड फादर, वी आर ग्रेटफुल टू यू लॉर्ड गॉड फादर। सचमुच में हम आपके आभारी है प्रभु। हम अपने हृदय से प्रभु आपको स्तुति देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, कि आने वाले दिनों में प्रभु आप हमें गहराई में ले चलेंगे प्रभु, गहराई में प्रभु आपके वचनों के द्वारा हमें सिखाएंगे, ताकि हम हमारे घरों में प्रभु, पड़ोसियों में प्रभु, हमारे कार्य क्षेत्र में प्रभु, जहाँ आपने हमें रखा है प्रभु, हम आपके सामर्थ्यशाली गवाह होंगे प्रभु। और आपके वरदान प्रभु जो आपने हर एक भाई और बहन के जीवन में प्रभु उंडेले प्रभु, उस वरदानों को कार्यशीलता में कार्य करने के लिए प्रभु आप हर को उत्साहित और हर को प्रोत्साहित करेंगे, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, शब्द तो मारता है परंतु आत्मा चिल्लाता है प्रभु, और हम आपके आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, इसके लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु जिस प्रकार से दाऊद कहता है प्रभु कि आपने मेरे अंदर एक नए सिरे से आत्मा प्रभु स्थिर किया है प्रभु, हाँ प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम कबूलते हैं प्रभु, इतने साल प्रभु, इतने महीने, इतने दिन प्रभु, जाने अनजाने में जो भी गलतियां हमसे हुई है प्रभु, जाने अनजाने में प्रभु हम आपके गवाह न बने हैं प्रभु, तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें हर एक पापों से क्षमा कर प्रभु, आपके पवित्र लहू के द्वारा धोकर हमें शुद्ध कर प्रभु, और सहायता कर पवित्र आत्मा कि हम आपके उस गवाह बने प्रभु, हम आपके सामर्थ्य से भरे हुए लोग बने प्रभु, और हर एक व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह आपके नाम का हम प्रचार करें प्रभु, आपके नाम की गवाही दे प्रभु, आपके नाम के द्वारा प्रभु हम उस चंगाई की भविष्यवाणी की बातें प्रभु, ज्ञान की बातें प्रभु, अन्य भाषाओं के वरदान प्रभु, अन्य भाषाओं बोलने का वरदान प्रभु, प्रचार का वरदान प्रभु, सुसमाचार करने का, शिक्षक का प्रभु, हर एक वरदानों से प्रभु हर एक व्यक्ति को आशीषित कर प्रभु। हम प्रार्थना करते इस समय प्रभु हर एक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से आप बातें कीजिए, कि हर एक व्यक्ति प्रभु सुबह शाम प्रभु आपके वचन पर मनन करता रहे, अध्ययन करता रहे प्रभु, और हर एक व्यक्ति खोजे कि हर एक व्यक्ति पर जो जीवन के ऊपर जो बुलावट आपने रखी है उसके प्रति वो वफादार रहे प्रभु, और उसके अनुसरण में चले प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में प्रभु आपने हमें बहुत सी बातें सिखाई है प्रभु, कि किस प्रकार से हमें आत्मिकता के जीवन में बढ़ना है, और उसके अनुसरण में प्रभु लोगों को भी तैयार करना है प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते इन सभी बातों के लिए प्रभु। आने वाले दिनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, पवित्र आत्मा अगुवाई कर और आशीषित कर और अभिषेकित कर प्रभु। हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक परिवार को हम आशीष की घोषणा करते हैं, अभिषेक करते हैं प्रभु, उनके हर एक काम धंधे में प्रभु, हर एक परिवार में प्रभु आपकी सुख, आपका शांति, आपके अनुग्रह प्रभु हमेशा उनका बना रहे प्रभु। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यशाली नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर, हम वैभव और अभिषेक के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो अपना जन्मदिन मना रहे इस हफ्ते। दोनों के लिए हम एक मन होकर प्रार्थना करते कि आप आपके राह में दोनों को चला प्रभु, और आपके आत्मा का सामर्थ्य से दोनों को चला परमेश्वर। आपने पिछले एक साल उनको बचाए रखा हर एक हानि से, और आपके इच्छा के अनुसार आपने कार्य किया उनके जीवन में। हर उतार और चढ़ाव में पिता परमेश्वर आप उनके साथ है, ये हम जानते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आने वाले साल में आपका गवाही बनने के लिए, सामर्थी गवाही बनने के लिए, हर प्रकार का विरोध के ऊपर विजय प्राप्त करके, यस लॉर्ड, उनको सामर्थ दे परमेश्वर। यस लॉर्ड, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से वैभव और अभिषेक को हम आशीषित करते प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए यीशु के नाम से मांगते, आमीन, आमीन, आमीन।
Praise God. God bless you. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Praise the Lord. कन्नन ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड. बहुत दिन हो गया, Praise the Lord, आपसे everyone. बात नहीं हुआ. Praise God, praise God. Lord, brother.